Chalo, good afternoon. So, आज now, what are we planning to do is start an absolutely new topic, new subject, and that is known as alternative investments. So, as we know, level 1 will have 10 subjects. One of that subject is alternative investments, and this will have a weightage of approximately 5 to 8 marks in our paper. Now, बहुत बार ऐसे पहले भी कहा होगा, but again, your one paper is including 10 subjects, and you will have all the subjects coming together in one paper itself. So what is different in CFA that we need to understand is we don't have one paper for one subject. We have one paper which will include all this 10. Now level 1, 2 hours 15 minutes one exam, 2 hours 15 minutes next exam, total 180 MCQs. You will have 90 in first 2 hour 15 minutes, again a break, and 90 again in next 2 hour 15 minutes. But again, the bifurcation is not like the first 5 subjects in paper 1 and first next 5 is like that. Nothing like that. So everything is jumbled up. Perfect. Today we intend to start with one subject which is known as alternative investments. Now alternative investments, if you're looking at this file, is a paper which will start from reading number 78. Now, in other professional courses, we say reading number is like a chapter number. So, हाँ, at times बहुत times students ये पूछते रहते हैं हमें कि सर reading number क्या है? तो reading number is nothing but chapter number. So we will have chapter number 78, chapter number 79, 80, 81, 82, 83 and 84. So 78 से लेके 84 के जो सारे readings है, वो सारे readings हमारे alternative investments पे. So I will say 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. I say 7 chapters in this subject at level 1. Level 2, you will again have that same paper, alternative investments, but readings will change. That means chapters will change. They will go into more advanced level. Perfect है. तो यहाँ पे हमारे पास 7 चैप्टर है और आज मेरे को चालू करना है आपके चैप्टर नंबर 1 से और रीडिंग नंबर 78. तो यहाँ पे रीडिंग नंबर 78 होगा. हमारे नोट्स में आपको रीडिंग नंबर 1 दिखेगा. रीडिंग नंबर 1 वाई वी इंटरप्रेट कि ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का रीडिंग नंबर 1 है. परफेक्ट है. सो रीडिंग नंबर 78 से आज हमें चालू करना है. नाउ दे ऑल्सो कीप ऑन सेइंग, सो ये सारे वर्ड से थोड़े similarity हो जाए. LOS comes to learning outcome statements. That means what are you learning? What should be your outcome? It is as simple as that. We say objectives or we say consent covered, concepts covered. So they say LOS. So LOS is learning outcome statements, and we will start with our reading number 78. And reading number 78 is alternative investments, its features, methods and structures. So first of all is what is alternative investment? Second is features, third one is the methods and last one is the structure. Are we clear with that one? तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. Now as we know, बाकी सारे subjects में हमने जैसे देखा है, तो what we do is this are special notes. तो ये बुक से हम पढ़ रहे हैं. एक और बुक आती है जिसे हम कहते हैं कोर, जो आपको CFA इंस्टीट्यूट से मिलता है. So core is what you will refer to it at the end for revision and all that purpose. और एक बार go through and lot of questions inside that. Treasure उसी का short notes है. अच्छा, और उसी को भी हम अच्छी तरह से precise form में present करते हैं and we prepare our class notes. So this is my class note. Perfect है. Before this attempt, what we used to do, we used to write this in class. इनफैक्ट अभी वो भी हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा इंप्रूव करने के लिए, तो आई हैव गिवन यू दिस इन बुक फॉर्मेट ओनली. सो दिस बिकम्स माय क्लास नोट्स. आर वी क्लियर विद दैट पार्ट? सो नाउ इफ यू लुक एट दिस क्लास नोट्स, सो वी से CFA लेवल 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पढ़ना है एंड रीडिंग नंबर 1 है हमारा. इसलिए मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे रीडिंग नंबर 1 क्यों दिया, रीडिंग नंबर 78 क्यों नहीं दिया? बिकॉज रीडिंग नंबर 78 इज ऑल थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स. तो वो लोग ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में देते रहता है. हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ये रीडिंग नंबर 1 है. आई एम गोइंग टू कवर 6 क्वेश्चंस इन दिस रीडिंग. परफेक्ट है.
सो दिस इज व्हाट आई से लर्निंग ऑब्जेक्टिव. वो लोग जैसे LOS कहते हैं तो हम लोग इसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर 6 क्वेश्चंस. सो एट द एंड जब भी हमारा ये चैप्टर हो भी जाए तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 6 क्वेश्चंस का आंसर हमें आता है कि नहीं. एंड इफ यू हैव द 6 क्वेश्चंस का आंसर, यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ आंसरिंग द MCQs ऑन दिस. व्हाट इज 6 क्वेश्चंस? फर्स्ट वन, व्हाट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट? अभी सब्जेक्ट का नाम रखा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो हमें ये तो पता चले कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है. सेकेंड, what are areas of alternative investments? Third, what are features of alternative investments? Fourth, what is the methods of alternative investments, structure of alternative investment, and last one is fee structure and terms involved. 6 questions. First question से start करते हैं. What are alternative investment? अब class notes बाद में देखना, हम पहले यहाँ पे ध्यान देंगे what are alternative investment. So पहले तो ब्रीफ में अपने दिमाग में ये डालो कि हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, कि हम इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें. नाउ यू आर एन इन्वेस्टर, सो ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए पहले अपने आप को वो शूज़ में डालो कि हम लोग कौन है, इन्वेस्टर्स, एंड वी वांट टू इन्वेस्ट. बाय डेफिनेशन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. एनी इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म इज नोन एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. तो डेफिनेटली दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि सर व्हाट आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स इन कैश, इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रेडेड स्टॉक्स, ट्रेडेड बॉन्ड्स, पब्लिकली ट्रेडेड. तो बेसिकली शेयर मार्केट में कोई शेयर्स है तो दे आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. शेयर मार्केट में कोई बॉन्ड्स ट्रेड हो रहा है तो दे आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाई वी कॉल देम एज ट्रेडिशनल? बिकॉज ये ट्रेडेड है, ये लिस्टेड है, एवरीवन कैन बाय एंड एवरीवन कैन हैव एनी गॉडडम इन्फॉर्मेशन. तो अगर आज मुझे जानना है कि रिलायंस का शेयर कितने पे चल रहा है, तो आई कैन लिटरली गो टू गूगल एंड अंडरस्टैंड कि रिलायंस का शेयर का प्राइस क्या है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, तो वहीं हमें रिलायंस का शेयर प्राइस मिल जाएगा. थोड़ी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. अगर आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसे कभी भी बेच सकते हो. तो इस सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं कि दे आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. अच्छा, अब यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, है ना. इसीलिए डेफिनेशन बहुत कोर एंड बहुत सिंपल है. व्हाट इज अल्टरनेट? अल्टरनेट टू व्हाट? अल्टरनेट टू ट्रेडिशनल. सो लुक एट द फर्स्ट लाइन. Alternative investment comprises various type of investment that do not fall under the heading of. So all the investments that do not fall under the heading of traditional investments are alternative investments, which refers to long-term investments in cash or publicly traded stocks and bonds. So investment in cash, मतलब हमारे पास कैश है. फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में FD करा दो तो ये भी हमारे लिए एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ. स्टॉक्स में पैसा डाल दो, बॉन्ड्स में पैसा डाल दो, विच 99% ऑफ द पब्लिक इन इंडिया माइट बी डूइंग इट. सो बेसिकली ये हो गया हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिशनल. अच्छा, व्हेन आई से 99% ऑफ द पब्लिक, आई मीन टू से 99% ऑफ इन्वेस्टर्स, बिकॉज डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट बी इन्वेस्टिंग एट ऑल. आर वी क्लियर विद दैट वन? तो ये सारे हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हुए. तो वापस एक बार हम लोग जाके क्लास नोट्स देख लेते हैं. What are alternative investment? Alternative investment comprises of various type of investment that do not fall under the heading of. Traditional investment refers to long-term investment in cash and held stocks and bonds. Clear with question number 1? Too good. Now what is question number 2? What are areas of alternative investment? So what is alternative investment? कहाँ investment करेंगे तो हम इसे alternative investment कहेंगे. परफेक्ट है. और ये जो एरियाज है ना, यही हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स है. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. सो बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पढ़ना है तो हर एक एरिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है. फिर सो व्हाट आर द एरिया? सबसे पहला कौन सा एरिया है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्राइवेट इक्विटी? प्राइवेट इक्विटी का मतलब है इक्विटी विच इज नॉट लिस्टेड. तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका ओनरशिप ले रहे हैं, बट ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो वी कॉल इट एज प्राइवेट इक्विटी. बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, शार्क टैंक देखा? तो वहाँ पे लोग जो फाइनेंसिंग फंडिंग मांग रहे हैं शार्क से, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी. एंड वाई वी कॉल इट एज प्राइवेट इक्विटी? बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड.
again it is not listed, that means it is not known to world. So alternative investments are something which is not commonly available to everyone in the world. That is what you have to keep in mind. कुछ भी publicly traded है तो ये traditional investment है. अभी exactly clear होता है. For example हम लोग डोमिनोज जाके बर्गर खा लिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा बेचता है anyway, so पिज़्ज़ा खा लिया तो ये listed था, सबको पता है. तो भाई ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये हमारे लिए ट्रेडिशनल है. बट हम कहीं चले गए, वो एक स्पेशलाइज हमें जो चाहिए उस हिसाब से वो बना के देगा, देन दिस बिकम्स अल्टरनेटिव एंड दैट इज प्राइवेट. दैट्स व्हाट आई सेड कि हमें चाहिए था, ये है, पूरी दुनिया को नहीं पता है. सो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? अल्टरनेटिव. परफेक्ट है? एनी डाउट्स इन दिस? टू गुड, वंडरफुल. प्राइवेट इक्विटी के बाद क्या आएगा? प्राइवेट डेट. देन कम्स रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट भी कहीं लिस्टेड नहीं है ना. ऑफकोर्स अभी हम कहीं पूछने जाएंगे तो एजेंट वगैरह मिल जाएंगे कि सर हमें यहाँ पे घर खरीदना है, वहाँ पे घर खरीदना है, दे वुड इन्फॉर्म मी, बट इट्स नॉट लिस्टेड, नॉट कॉमनली नोन टू एवरीवन. और रियल एस्टेट में भी दो आएंगे, पहला होगा कमर्शियल रियल एस्टेट एंड सेकंड वन इज रेसिडेंशियल. सो कमर्शियल इज ऑफिस स्पेसेस एंड रेसिडेंशियल इज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट वन कम्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कमोडिटीज. Commodities में heavily, kind of things are like gold, silver. Next one is farmlands, timberlands, tea estates. And you are not thinking about that as, I don't know what, but you're not thinking about them in the purpose of कि हमारे पास ये है, ये हम investment के purpose से सोच रहे हैं. So I'm thinking of buying a farmland. I'm thinking of buying a tea estate. I'm thinking of buying a timberland. अब टिम्बरलैंड एंड ऑल हमारे मुंबई में हमने सुना भी नहीं होगा सर क्या होता है टिम्बरलैंड. इट्स अ फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे वी डू कल्टिवेट टिम्बर ट्रीज, फिर उसे काटते हैं, वुड बनाते हैं, बेचते हैं. सो बेसिकली दैट बिकम्स टिम्बरलैंड. एब्सोल्युटली प्राइवेट बिजनेस एंड वेरी काइंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट बिजनेस इन नॉर्थ. अपना टी एस्टेट्स तो हमें पता ही है. सो यू कैन गो टू आइदर केरला एंड ऑल, और यू कैन गो टू वेस्ट बंगाल एंड ऑल, सिक्किम एंड ऑल. सो टी एस्टेट्स ह्यूज बिजनेस. We have a lot of private players who will invest into this and they will say we are doing this. अपने महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बोलूँगा मैं, सूला वाइन यार्ड्स. So now they have entered into the business of creating wines. But that wine yard itself is nothing but a natural resource. So natural resource can have form of commodity or farmland or timberland or tea estates. Perfect. Another form of investments now that is catching up on a greater level is infrastructure. Lot of corporate houses are now entering into this kind of businesses. So there can be social infrastructure or economic infrastructure. Social infrastructure is schools, colleges. Now they have become business. You have private schools, private colleges, coaching classes. And then you have economic infrastructure like roads, railways. Railways was like governed by government, but that is what also now privatized now. धीरे धीरे हम इसे privatization पे लेके जा रहे हैं. So have you heard about toll roads, tolls? The tolls that you pay. क्यों पे कर रहे हैं हम ये टोल्स, और किसको पे कर रहे हैं हम ये टोल्स? नहीं. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट हैज गिवन दिस पार्ट ऑफ रोड टू सम प्राइवेट कंपनी. अब प्राइवेट कंपनी को बोला तुम ही मैनेज करो इसे, और अगर प्राइवेट कंपनी उसे मैनेज कर रही है, दे वांट फंड्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कलेक्टिंग टोल्स फ्रॉम यू. सो इनफैक्ट ऑल टोल रोड्स आर प्राइवेट रोड्स. The greatest companies into this toll road, one of the companies known as IRB Infrastructure. तो IRB Infrastructure का काम ही क्या है? ये गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट को बोलेगी मेरे को ये 50 किलोमीटर का रोड दे दो, मैं मेंटेन करूंगा. तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा ना, अपना काम खत्म हो गया. पब्लिक वैसे ही गाली दे रही है, रोड टूट रहा है. सो अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? IRB का. बट IRB अगर वो 50 किलोमीटर्स का रोड मेंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल टू चार्ज यू द टैक्स. परफेक्ट है. अपने बॉम्बे का तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दे दूं मैं, अपना बैंड्रा-वर्ली सी लिंक, नॉट बिल्ड बाय गवर्नमेंट, बिल्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी. Absolutely. Why? Because government does not have that much amount of funds to put into it, na. So if any private company comes up and they say we want to do it, please go ahead. अब रेलवेज में चालू हो गया, प्लीज गो अहेड. बीच में तो ऐसा प्लान था, आई डोंट नो अभी तक वो कहाँ तक पहुंचा, बट प्लान था कि हम प्राइवेट कंपनी को रेलवेज दे देंगे, आप ही चलाओ रेलवे. सो वील हैव अ ट्रेन रन बाय रिलायंस. आप टिकट बुक कराना है तो कहाँ जाओ? रिलायंस के वेबसाइट पे जाओ, टिकट बुक कराओ.
जैसे हमारे एयरवेज चल रहे हैं, तो वी हैव कंपनीज लाइक विस्टारा, वी हैव कंपनीज लाइक इंडिगो, वैसे हम प्लान कर रहे थे कि हम रेलवेज में भी ऐसे करेंगे, तो विल हैव कंपनीज लाइक रिलायंस एंटरिंग इनटू रेलवेज। अभी क्लियर विद दैट वन, बट अभी तक वो प्लान कहाँ तक पहुंचा हमें पता नहीं, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो वी कैन हैव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हियर, देन वी कैन हैव डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल, एंड फाइनली वी हैव समथिंग विच इज ऑल्सो नोन एज हेज फंड्स। Like what are the hedge? विल गो अहेड। हाँ, इसीलिए मैं हेज फंड्स का कोई सिनॉप्सिस नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज उसके लिए पूरा एक चैप्टर है अपने पास, एंड वी लर्न अ लॉट अबाउट दिस हेज फंड्स। परफेक्ट है, बट दिस आर द एरियाज ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। So just without looking into it, if we can try it, what are areas of alternative investment? We can say private equity, private debt, real estate के अंदर commercial आ जाएगा, residential आ जाएगा, wonderful. Next, natural resources के अंदर commodities आ जाएंगे, farmlands आ जाएगा, timberlands आ जाएगा, tea estates आ जाएगा, and we can include lot of more. Next, hedge funds, wonderful. Infrastructure. So we can have economic infrastructure, social infrastructure, and we can also have something like digital assets. Digital assets. Nowadays, like people are selling on digital. 100%. Lot of tokenisms and tokens and all. So lot of things as digital assets now coming up. Are we clear with that one? Great. और ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है. So in fact, we'll have a chapter known as hedge fund. We'll have a chapter known as digital assets. So that is what we said ना कि हमारे जो रीडिंग्स हैं वो उसी तरह से बने. तो वापस एक बार ऊपर जाके अंडरस्टैंड कर लेते कि चैप्टर भी कैसे डिजाइन किए गए. डू यू हैव अ चैप्टर नोन एज हेज फंड? डू यू हैव अ चैप्टर नोन एज नेचुरल रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड डेट इक्विटी, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे. इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एसेट्स. सो रीडिंग नंबर 84 तक वहां पे जाएगा. रीडिंग नंबर 85 फिर एक अलग सब्जेक्ट आएगा, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. क्लियर है? But that is not our part right now. हम alternative investment में, and that's what we said, alternative investment has 7 chapters. Clear with question number 1? What are alternative investment? Alternative investment comprises of various types of investments which are not traditional investment. Traditional investments are investment into cash, listed stocks, listed bonds. What are areas of alternative investments? Private equity, private debt, real estate, natural resources, infrastructure, digital assets, and hedge funds. Clear? पक्का? Can I go ahead? Too good, awesome. चकास वाला काम हो रहा है. ठीक है, हमारे क्लास का एक सिंपल सा रूल है, धीरे धीरे आप फेमिलियराइज हो जाएंगे. रूल ये है कि अगर नहीं आ रहा है तो 10 बार क्वेश्चन पूछ लो, अगर आएगा तो चकास बोल दो एक बार. ठीक है, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है अपना? What are the features of alternative investment? So is alternative investment different from traditional investment? Of course. So let us understand the features. Because अगर आपने बोल दिया इतने शान से कि of course सर ये डिफरेंट है, तो 101% डिफरेंट है, तो पर ये तो जाने कि क्यों डिफरेंट है. तो अगेन बैक टू योर नोट्स एंड देन वी गो टू अवर क्लास नोट्स. ठीक है ना? अब यहाँ पे दैट्स व्हाट आई हैव डन. सो व्हाट हैव आई डन इज, मैंने छोटे छोटे वर्ड्स में अपना काम कर दिया. तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट डेट, रियल एस्टेट के अंदर मैंने आपको दिखाया कि वी कैन हैव कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, नेचुरल रिसोर्सेज में फार्मलैंड, टिम्बरलैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सोशल और कमर्शियल दिख जाएगा, एंड हेज फंड्स. अभी क्लियर विद दैट पार्ट? तो बेसिकली रीडिंग बहुत बड़ा हो जाता है, इसको शॉर्ट में हमने प्रेजेंट कर दिया. दैट इज व्हाट इज आवर क्लास नोट्स फॉर अबाउट. परफेक्ट है. अब फीचर्स की बात करते हैं. तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर, मोर स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर्ड ऑफ investment managers. So now people who manage this kind of investments, investment managers, they require more specialized knowledge, more specialized skills. आप इन्वेस्टर हो, अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो यू विल डेफिनेटली कनेक्ट विद समवन हु विल हेल्प यू टू इन्वेस्ट. सो ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स में तो आजकल कोई भी हेल्प कर देता है यार. वी हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बोल दो आप कि सर दे विल एडवाइस, सर रिलायंस का स्टॉक लो, सर टाटा का स्टॉक लो, सर बिरला का स्टॉक लो. डू यू अग्री विद दैट वन? तो ये तो है मार्केट में. बट पीपल हु विल सजेस्ट यू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, दे विल एडवाइज यू ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. दिस मैनेजर्स रिक्वायर्स मोर ऑफ नॉलेज, मोर ऑफ स्किल्स. ये ऐसे हो गया ना, डायमंड्स खोदने जैसी बात हो गई. अब हमें थोड़ी ऐसे पता है कि कहाँ क्या है,
तो we'll have a manager, उसको बोलेंगे भाई देख हमारे पास 1000 करोड़ रुपए है and I want to invest this 1000 crore rupee. You tell me where to invest. But the person whom you are contacting has to have more knowledge, more skill. Great amount of jump from what the traditional investments are. Well connected, great knowledgeable, well traveled. तभी तो इन लोग का ऊपर का सर्कल ऐसा होगा ना कि प्राइवेट इक्विटी है तो कौन पैसा मांग रहा है, कौन सी कंपनी में आज इन्वेस्टमेंट करने का हमारे पास स्कोप है. Are we exactly clear with that one? All your sharks, they are doing private equity also, but they might be, I feel somewhere, kind of advising also other people to have the private equity. Because they will have lot of people coming into them कि सर हमें फंड से क्या करना है, तो they can analyze and invest, they can analyze and suggest. So great knowledge, great skill required. Second, थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ, but third is less liquidity of assets held. So Reliance का शेयर खरीद लिया, कब बेच सकते हैं? कभी भी. बट अगर हम प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट विड्रॉ सो सून. योर लिक्विडिटी विल बी लेस. बिकॉज आज अगर हमने 1000 करोड़ लगाया और कल बोले चलो यार अभी पैसे निकाल लेते, ऐसा नहीं चलेगा. अभी तो आपने पैसे लगाए, वो सेटअप करेगा, वो आगे लेके जाएगा, रिटर्न्स कभी आएगा, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीरियड विल बी लॉन्ग. सेकेंड, द लिक्विडिटी विल बी बैड. Third one is the amount requirement will also be huge. Because you're not buying a share, you're not buying a bond, you're buying a property. Maybe you're buying an airport. As I told you, IRB infrastructure का काम ही है कि roads खरीदना. So they are buying 50 kilometers of road. So the amount required is huge. Time period required is huge. Liquidity is absolutely poor. Are we clear with that part? Plus the skill requirement is too high. Then the point number 2, they have very low correlation with returns from traditional investment. Low correlation means what is the relation with traditional investment? कि traditional investment का return ज़्यादा है तो इनका return भी ज़्यादा है. So we say they are related. Are we exactly clear with that? Now for example, if I tell you कि gold का prices ऊपर जाएगा तो silver का prices भी ऊपर जाएगा. That means the price of gold and silver are correlated. Are we exactly clear with that one? And we say correlated. Again, interdependence is a good word, but in finance we use the word related or not related. So when we say they are correlated, that means yes, if the stock price of gold goes up, stock price of silver also goes up. Are we exactly clear with this one? Any doubts? Perfect. But here the returns between the traditional investment and alternative investment is not correlated, is actually independent. So returns of stocks and returns of private equity, no relation at all. Private equity is basically you are investing into a company which is like a newborn company, it's a startup, kabhi aage jayega, kabhi piche jayega, we don't know about it. But it definitely does not depend upon the stock market. तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्राइवेट इक्विटी भी मजे कर रहा है. नहीं, देयर इज नो रिलेशन एज सच, एंड दैट इज व्हाई पॉइंट नंबर 2 सेज लो कोरिलेशन. आर वी क्लियर विद दैट वन? दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एक्चुअली. सो अगर आपने टी एस्टेट ले लिया तो टी एस्टेट का स्टॉक मार्केट से क्या लेने देना? कुछ नहीं. इट विल हैव सम डिफरेंट फैक्टर्स ऑल टुगेदर. सर आज बारिश गिरा है बरोबर से, सर हमारे टीज के प्लांट्स बहुत अच्छे हुए हैं, सर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है, सर मार्केट में सेल बहुत अच्छा हो रहा है, सर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है. सो द फैक्टर्स विच विल गवर्न द रिटर्न फ्रॉम द प्राइवेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. आर वी क्लियर विद दैट पार्ट? देन कम्स a point which is very important again. Difficulty in appraising the performance, कि हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट परफॉर्म कैसे कर रहा है, इसका अप्रेजल करना बहुत डिफिकल्ट है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हुआ? आप परफॉर्म कर रहे हो कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो. दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल. हाउ वुड यू परफॉर्म और हाउ वुड यू अप्रेज अ पर्सन कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैन आई से एक स्टैंडर्ड होगा?
आप वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा है कि बुरा है. डू यू अग्री विद दैट वन? सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे कंपेयर करोगे? स्टॉक मार्केट के रिटर्न से कंपेयर करोगे. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का रिटर्न 10% है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% है. नहीं सर, म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है. क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट 10% दे रहा है, बट हमारा म्यूचुअल फंड तो सर 12% दे रहा है. डेट मीन्स आवर रिटर्न इज गुड. सो कहीं पे भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए कहने से वी नीड टू हैव द बेंचमार्क. तो बेंचमार्क होगा तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे ना. अब मेरे घर की कहानी बताता हूँ. सो आई हैव अ सिस्टर, शी इज 2 years यंगर टू मी. तो मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल उसी के साथ होता था हर टाइम. नाउ पीपल विल से यार राहुल यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड. व्हाई एम आई नॉट परफॉर्मिंग गुड? सी योर सिस्टर. सो मेरा बेंचमार्क कहाँ था? सिस्टर. मेरे तो स्कूल वाली कहानी बहुत अलग थी. फॉर एग्जाम्पल मतलब रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको. यू नो आई हैव अ ब्रदर हु इज 2 years elder to me. He is my cousin and I have a sister who is 2 years younger to me. Now the person who was 2 years elder to me, he is a ranker in my school. Rank 1, rank 1, rank 1 every time. तो भाई जब तक भाई थे तब तक तू पीयूष का भाई है, तू पीयूष का भाई है भाई. क्यों? पीयूष इज रैंकर 1 और अपना तो कहीं रैंक्स में नाम ही नहीं आ रहा है. जब भाई गए तो मैं सोचा अरे यार अभी अपनी लाइफ सुधरेगी थोड़ी. नाउ पीपल विल नॉट जज मी एज कंपेरिजन. तो फिर सिस्टर आ गई 2 साल नीचे. अभी क्लियर विद दैट. सो एक बेंचमार्क होना चाहिए तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे. बेंचमार्क ही नहीं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहाँ करेंगे? तो प्राइवेट इक्विटी का बेंचमार्क कहाँ है? अब आपने रियल एस्टेट में पैसा डाला है सर, और किसने रियल एस्टेट में पैसा डाला? दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल इजीली. तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें कहां से पता चले? सो परफॉर्मेंस अप्रेजल बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है. नहीं ना, है ही कहाँ, मार्केट ही कहाँ ऐसी. इसीलिए तो कहा स्टॉक मार्केट है ना, बट प्राइवेट इक्विटी का मार्केट का है. हाँ है, पर बहुत कम डेटा अवेलेबल है और बहुत छुपा छुपी वाला डेटा अवेलेबल है. आप इतना ओपनली नहीं बोलेंगे ना ये सारी चीजें. अब रिलायंस का शेयर प्राइस तूने कितने में खरीदा? 3000. मैंने 3300 में बेचा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इजीली डेटा अवेलेबल है. अच्छा तूने क्या किया? मैंने 50 किलोमीटर का रोड खरीद लिया था. व्हाट काइंड ऑफ अ डेटा इज दैट? वेयर इज अ बेंचमार्क? व्हाट इज अ रिटर्न बेंचमार्क? वेरी लेस. सो आई एम नॉट सेइंग नहीं कर सकते बट बहुत कम. प्लस देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस इनटू दैट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट. परफेक्ट है. सो दिस आर फीचर्स ऑफ व्हाट? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. आई पुट इट अक्रॉस थ्रू यू अगेन. अपने वापस नोट पे जाते हैं. और एक पॉइंट भूल चुका हूँ, पॉइंट नंबर 6, दैट इज वेरी अमेजिंग. व्हाट आर फीचर्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट? फर्स्ट वन, डू यू अंडरस्टैंड मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज? सेकंड, इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू बी illiquid. मैंने इसे लिक्विड मीन्स कल पैसा चाहिए मिल जाएगा, बट यहां पे कल पैसा चाहिए तो नहीं मिलेगा. अब रियल एस्टेट सोच लो आप. अब फॉर एग्जांपल आपने घर खरीद रखा है, बेच डालेंगे. हाँ बेच डालेंगे, पर कल तो नहीं ना. कभी कभी तो ऐसा होता है इट टेक्स इयर्स अगेन टू सेल दैट हाउस अगेन. अभी क्लियर विद दैट पर? अब कल का ही एग्जाम्पल है. आई हैव अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, ही इज बाइंग अनदर प्रॉपर्टी, 3 BHK खरीद रहा है भाई फैमिली के लिए. उन्होंने एक शॉप खरीद रखी थी. बोलता है सर शॉप बेच डालूंगा. 3 महीने से शॉप बेचने की कोशिश कर रहा है. कल जाके रात को कंप्लीट हुआ, वो भी उसको अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 lakhs कम मिला एज कंपेयर टू व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मुझे मिल जाएगा. बट अगर हम रिलायंस और टाटास के शेयर की बात करें तो ये तो कल बेच देंगे हम लोग, बात खत्म हो जाएगी. सिंपल. नेक्स्ट वन, लॉन्गर टाइम हराइजन. इन्वेस्टमेंट करना है तो लंबे समय तक करना है. नेक्स्ट वन, लो कोरिलेशन, लार्जर अमाउंट. लार्जर अमाउंट के बाद लो कोरिलेशन टू रिटर्न टू व्हाट? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. लास्ट पॉइंट ले लेते, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ मैनेजर इज वेरी डिफिकल्ट. एंड पॉइंट नंबर 6 इज हाई फी स्ट्रक्चर. अब आपका जो मैनेजर है ही इज गोइंग टू चार्ज यू टू हाई टू मैनेज द फंड, टू मैनेज योर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिकॉज वो बंदा ही तो पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास लेके आएगा ना, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इक्विटी में पैसा डालना है, वहाँ पे इक्विटी में पैसा डालना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो फी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हाई. इनफैक्ट हमारे पास पूरा एडवाइजरी 100%. तो वो जो एडवाइजर होगा आपका, ही इज गोइंग टू चार्ज यू लॉट ऑफ फीस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगेन हमारे पास एक पूरा चैप्टर होगा ये फी के बारे में डिस्कस करने के लिए. बिकॉज सी आज आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो फीस आर टू लेस, ब्रोकरेजेस आर टू लेस.
तो आजकल तो एक ऐप्स ही अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल लाइक जीरोदा एंड ऑल, द फीस आर जीरो मिनिमम, इसलिए तो नाम भी जीरोदा रखा था. हाँ, थोड़ा बहुत सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्सेस होते हैं उनके, लाइक एंजल वन एंड ऑल दिस कंपनीज आर 0%. अभी क्लियर विद दैट वन. सो वहाँ पे मिडलमैन का कोई बड़ा रोल है ही नहीं. वैसे ही अगर हम लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने, तो अगेन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, वो भी अपना खर्चा काटते हैं, बट बेयर मिनिमम. बट दिस आर द पीपल ना, दे आर लाइक ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स एंड दे आर गोइंग टू चार्ज यू हैवी. But they are definitely managing lot of amount of money, huge amount of money, and definitely they are going to give you returns which traditional investments will not. You know, आगे हम जाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आपको पढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह, यू विल बी अमेज्ड. जहाँ पे ये प्राइवेट लोगों का काम खत्म होता है तभी तो वो शेयर लिस्ट होता है मार्केट में. तो हम जो शेयर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कौन घुसता है? जहाँ पे ये लोग कमा के बैठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर वो लोग घुसते हैं. सो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जब पैसा लगाता है कंपनी में, उसको वो कंपनी से एग्जिट लेना है. अभी मैंने बहुत कमा लिया, तो वो क्या करता है? पब्लिक इश्यू लेके आता है, जहाँ पे वो अपने शेयर्स बेच रहा है, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे. सो पीपल हु आर बाइंग द शेयर ऑफ दैट कंपनी, दे थिंक दैट दिस कंपनी स्टार्टिंग एंड आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. बट बाय दैट टाइम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ मनी. Are we clear with that one? So the person who is managing all this show for you is going to definitely charge you a lot of expertise. That's right. So वो expertise आ गया, तो expertise के साथ हमने fee डाल दिया, longer time, illiquid, larger amount that we require. Performance appraisal becomes very difficult, and definitely there is no correlation between return to traditional investments. Are we clear with that? Question number 1. So what is alternative investment done? What are features of alternative investment done? What are areas of alternative investment done? Done. 3 things are done. That is 3 questions are done. Can we go to question number 4 now? What is question number 4? Methods of alternative investment. Very interesting question. So अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपने इंटरेस्ट तो आ ही गया होगा कि सर चलो करते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. कैसे करें? 3 ways. One is fund investing. Second one is co-investing. Third one is direct investing. पहला फंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड को इन्वेस्टमेंट, थर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. व्हाट आर दोस 3? तो पहला फिर से, व्हाट इज द फर्स्ट वन? फंड इन्वेस्टमेंट. छोटा सा डायग्राम बनाया आपके लिए, तो आपको समझ जाएगा कि व्हाट इज फंड इन्वेस्टमेंट. सो कैन यू सी वो मटका विथ लॉट ऑफ मनी, दैट इज फंड. एंड ये जो ये साइड 4-5 लोग चल रहे हैं, दे आर. सो व्हाट दे डू, they put the money into a fund together, and this is purely like a mutual fund operating. Just the difference is mutual fund में बहुत छोटे छोटे लोग इन्वेस्ट करते हैं. 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो एक वो फंड बनता है, एंड बाद में वो म्यूचुअल फंड का भी एक फंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर ये पूरा फंड इन्वेस्ट करेगा. अब वो छोटे से लेवल की चीज़ों को अब बड़ा बना दो. अब यहाँ पे ये जो 4-5 लोग दिख रहे हैं ना, ये 1000 करोड़ लेके आ रहे हैं. 1000 रुपए नहीं लेके आ रहे, ये 1000 करोड़ लेके आ रहे हैं. एंड दे आर बिल्डिंग अ फंड, एंड देन देयर विल बी अ फंड मैनेजर, एंड दिस फंड मैनेजर विल इन्वेस्ट दिस फंड. डेफिनेटली अब वो फीचर्स आगे दिमाग में. फंड मैनेजर हाईली इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, हाईली स्किल्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा फीस चार्ज करने वाला है. ही इज गोइंग टू मैनेज द फंड, ही इज गोइंग टू बाई थिंग्स एंड सेल थिंग्स ऑन द टाइम ही डिसाइड्स दैट इज राइट. हाँ, बट डेफिनेटली टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड होता है. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको 1000 करोड़ दे दिया, अभी आप कुछ भी करो, स्मगलिंग करो उससे. नहीं नहीं नहीं. सो एक स्ट्रक्चर डिजाइंड होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू. हम रियल एस्टेट में बिजनेस करने वाले हैं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजनेस करने वाले, या तो फिर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में करने वाले, समथिंग लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस के बिजनेस में पैसा लगाने वाले. तो यहां पे फंड मैनेजर को एक डायरेक्शन दिया गया होता है, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस दिए गए होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट दिया गया होता है, सारी टर्म्स डिफाइंड होता है. बट बाद में फाइनल कॉल कौन लेगा ये सारी चीजें करने का? फंड मैनेजर. सो दिस बिकम्स फंड मैनेजमेंट. Are we clear with that one?
सो फंड मैनेजमेंट में आपको इन्वेस्टर्स दिखेंगे और आपको एक फंड मैनेजर दिखेगा. अब देखेंगे आप इन्वेस्टिंग इन पूल ऑफ असेट्स अलॉन्ग विथ व्हाट अदर इन्वेस्टर्स. दैट मीन्स अदर इन्वेस्टर्स के साथ हम एक पूल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड पॉइंट नंबर 2, फंड मैनेजर विल सिलेक्ट मैनेज इन्वेस्टमेंट यूजिंग अग्रीड अपॉन स्ट्रैटेजी. अग्रीड अपॉन स्ट्रैटेजी का मतलब स्ट्रैटेजी इज प्री डिफाइंड 100%. You cannot have open hand to do everything. At least there should be strategy in place. Ultimately, then it is your call how you are going to do and how you are not going to do. But this is going to be a predefined strategy. Are we clear with that one? पक्का आगे बढ़े. Strategy is just predefined by the fund manager. Fund manager along with investors. Okay. Investors have to agree to it. Okay. Only then the fund manager starts taking the calls. Okay. अभी एग्जैक्टली क्लियर. अब ये ना ये 2 वे से चल सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग. या तो सारे जो इन्वेस्टर्स है वो साथ में मिलेंगे, खुद स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे और फंड मैनेजर को अपॉइंट करेंगे. Okay. या तो फंड मैनेजर खुद बोलेगा देखो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, कौन कौन आना चाहता है. Okay. बट अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी इज प्री डिफाइंड, नॉट अ फ्री ओपन हैंड टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. इट्स लाइक ठीक है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये डिफाइंड है हमारा. परफेक्ट है मैम. चलिए आगे बढ़ा जाए. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो धीरे धीरे कैचअप करेंगे. व्हाट इज सेकेंड थिंग नाउ? Co-investing. Co-investing. So then second thing comes is co-investing. So what is co-investing? तो यहाँ पे investor along with fund manager will create a fund. तो यहाँ पे fund manager खुद भी अपना पैसा लगा रहा है और investor खुद भी अपना पैसा लगा रहा है. Okay. पहले वाले में 99% of time fund manager does not have its own investment. He just manages it. Okay. यहाँ पे fund manager is also involved into it. Okay. Second thing, very important, that's why it is known as co-investing. That investor will also have a right to decide कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. सो डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली हियर. Whereas in fund investing, decisions were taken only by fund manager. स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे मिलके, पर स्ट्रैटेजी एक बार डिजाइन हो जाए फिर किसका पार्ट है? ठीक है. एक एग्जांपल देता हूं आपको फंड मैनेजमेंट का. सो म्यूचुअल फंड के ऊपर एक चीज आती है विच इज नोन एज पीएमएस. पीएमएस मींस पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट. सो पीएमएस कैसे चलता है? पीएमएस में हमें एक अमाउंट दे देना है एक कंपनी को. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैंक विच इज नोन एज आईसीआई. आईसीआई का पीएमएस चल रहा है. अभी एग्जैक्टली क्लियर. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पूरा फुल फॉर्म पीएमएस का. तो आपने 50 लाख, और इंडिया में उसका मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपया. तो 50 लाख के नीचे पीएमएस नहीं हो सकता है, 50 लाख एंड ऊपर पीएमएस हो सकता है. तो आपको मिनिमम कितना देना पड़ेगा उन्हें? 50 लाख. आपसे 50 लाख लेंगे, आपके ही नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और शेयर्स खरीदेंगे, वो भी आपके ही नाम पे. Are we clear with that one? But strategy decided है. What is strategy decided? कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना है. बट कौन इन्वेस्ट करेगा? आप नहीं. फिर आपको वो 50 लाख रुपए दे देना है, आपके नाम पे ही होता रहेगा ये सब कुछ. बट ही विल टेक अ कॉल. द मैनेजर विल टेक अ कॉल, ऑफकोर्स अग्रीड अपॉन द स्ट्रैटेजी. सो अभी उनका एक आईसीआई के 2 फंड चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, छोटे नाम है. वन इज नोन एज कॉन्ट्रा फंड एंड सेकेंड वन इज नोन एज पाइप फंड. अब कॉन्ट्रा फंड में क्या है कि दे विल इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स विच आर कॉन्ट्रा टू द मार्केट. कॉन्ट्रा टू द मार्केट मतलब अभी वो बहुत लो वैल्यूड है, तो लो वैल्यूड स्टॉक में वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से. व्हाट इज पाइप फंड? तो बोलते हैं ये हम लोग स्मॉल स्केल में इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप्स में. सो वी हैव लार्ज कैप्स, वी हैव मिडिल कैप्स, दैट इज मीडियम कैप, एंड वी हैव स्मॉल कैप. तो ये पाइप फंड मतलब किसमें इन्वेस्टमेंट होगा? स्मॉल कैप्स में. तो अगर आप उसे बोलोगे मेरा 50 लाख इज फॉर पाइप इन्वेस्टमेंट, तो दैट मीन्स इट इज अग्रीड कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी इनटू स्मॉल कैप्स. वो डिसाइड हो चुका है. नाउ ही विल इन्वेस्ट ओनली इन स्मॉल कैप्स. और वो कॉल आपका नहीं होगा, फिर वो उसका होगा. कौन से कंपनी में डालना है स्मॉल कैप में, कब डालना है, कब निकालना है, क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? फंड मैनेजर. दैट इज फंड इन्वेस्टमेंट्स. स्ट्रैटेजी डिसाइडेड बट डिसीजंस टेकन बाय फंड मैनेजमेंट. co-investment में decisions will be taken by fund management along with the co-investors. परफेक्ट है. को इन्वेस्टर को मजा क्या है पता है? यहाँ पे
First of all, he has a say in the decision making. Second, he can learn a lot from the fund manager. फंड मैनेजर है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है, तो उसके साथ रह रह के हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. Are we exactly clear with that one? So this becomes what? Co-investments. थर्ड इन पॉइंट डालना भूल गए, कल नोट्स रेक्टिफाई करके आपको थर्ड इन्वेस्टमेंट दे देंगे हम. उसका नाम क्या है अपना? इंस्टीट्यूशन का आई डिडंट गेट यू. दिस इज ये क्लासेस का नोट्स है. हाँ, और वो जो नेक्स्ट स्लाइड है ये कप्लान के नोट्स है, तो ये तो बुक्स आपको मैं क्लास में दूंगा ही, तो यू विल गेट बोथ ऑफ देम. ठीक है. अब आप जब CFA का रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो आपको CFA की तरफ से कोर बुक्स मिलेंगे. दे आर ह्यूज बुक्स. उसके शॉर्टर वर्जन्स अवेलेबल है, स्वेजर, कप्लान. जैसे हमारे इंडिया में हम डाइजेस्ट चीज़ बोलते थे, ये स्वेजर, कप्लान, दे आर शॉर्ट नोट्स. दे एक्सप्लेन थिंग्स इन नटशेल. अब वो स्वेजर, कप्लान को बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने क्या कर दिया, क्लास नोट्स. जैसे हमें पॉइंटर्स याद रखना है, सो रादर देन राइटिंग द पॉइंटर्स इन द क्लास, यू हैव क्लास नोट्स. परफेक्ट है, क्लियर. एग्जामिनेशन के दिन सिर्फ ये क्लास नोट्स हाथ में होना है. बढ़िया, आगे बढ़ा जाए. अच्छा, थर्ड कौन सा इन्वेस्टमेंट्स बोल रहा था मैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? नाम से क्लियर है. नाउ यू डोंट नीड अ फंड मैनेजर, you don't need co-investing also, you directly going to invest into this. But to be clear, you have to be having great skills and knowledge yourself. Second, you need to have a huge amount of money yourself. तो आप ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो. सो हु आर द पीपल हु डू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स? मुकेश अंबानी. रिलायंस जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बट मुकेश अंबानी हिमसेल्फ विल हैव सो मच ऑफ फंड्स ना, सो दे ऑल्सो थिंक लाइक अस ऑल्सो. इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? ऐसे थोड़ी पैसा बचा के रखे, खाली घर पे लगा के रखेंगे. सो दिस आर द पीपल हु हैव देयर ओन फंड मैनेजर्स. देन मैंने अपॉइंट किया इन लोगों को. अच्छा, ये लोग भी अपने दिमाग लगाएंगे, ठीक है, करो, बट आई विल टेल देम व्हाट टू डू 99% ऑफ टाइम, एंड देन दे हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. So that becomes कौन सा investments? Direct investments. You know, there are people who are investing directly. There are sovereign funds like अपना Saudi Arabia, Saudi का king. So rich they are that they have their own fund. We call it as sovereign fund. मतलब country का fund है, Saudi का खुद का sovereign fund है, and they invest. हमारे इंडिया तो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे तो इंडिया में वैसे ही पैसे कम है, तो इतना टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है. इनफैक्ट वी स्टिल हैव अ डेफिसिट फाइनेंसिंग बजट. दिस अबू धाबी एंड ऑल, दे हैव गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. सो व्हाट दे डू इज दे कीप ऑन थिंकिंग कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ नहीं इन्वेस्ट किया. दे हैव मनी इन गूगल, दे हैव इन्वेस्टेड इन फेसबुक, दे आर इन्वेस्टेड इन एप्पल, दे हैव इन्वेस्टेड इन टेस्ला, दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडियन रिलायंस. Are we exactly clear with that one? And these are all direct investments. So sovereign king decides he wants to invest this money everywhere else, and then they will have people who will do things for them. अच्छा, this people will also help them at times. Sir, ये देखो यहाँ पे हमारा कुछ बन सकता है. Okay, चलो, let's do that. But this is direct investment. So we have three forms of investment. The first form of investment is fund investment. The second fund is co-investment, and the third one is known as direct investment. So this is fund investing, co-investing, and direct investing. Are we clear with 4 questions? Question number 4, are you very clear with that? What is question number 4 for? Types of investments. There are 3 types of investment, or methods of investments, I will say. The first method of investment is fund, second one is co, and third one is direct. 4 questions एक बार बिना देखे repeat करते हैं. First one, what are alternative investments? Alternative investment comprises of all investments which are other than traditional investment. Traditional investment is into cash, publicly traded stocks and bonds. Next one, you are going to answer me. What are the areas of alternative investments? areas of alternative investment. Private equity. Private equity, debt equity. Wonderful. Private debt. Private debt. Perfect. Next. And real estate. Wonderful. Hedge funds. Wonderful. Natural resources.
वंडरफुल, infrastructure. डन है, परफेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, गिव मी सम फीचर्स ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. Features of alternative investments. First, type methods are different. Features can get लार्जर पीरियड, larger period, larger amount, larger period, larger amount in liquidity, illiquid investments, and high fee structure, difficulty in performance appraisal, and low correlation of return between the traditional investment and the fund investment. Are we exactly clear with that one? Next one, question number 4. What are the methods of alternative investments? First is fund investment. Fund investments. Second is correlated investment. Co-related नहीं, co-investments. Co-investments. को-इन्वेस्टमेंट मतलब लोग मिलके इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज को-इन्वेस्टमेंट्स. सो यहाँ पे फंड मैनेजर भी इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे, साथ में मिलके कॉल लेंगे. इन्वेस्टर्स छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, मस्त उन लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा इन लोग के साथ रह के. डू यू एग्री विद दैट वन? टू गुड, Third is direct investment. पक्का. चलो आज यहाँ तक रख रहा हूँ, बट मैं फर्स्ट MCQ दिखा रहा हूँ. एक्चुअली MCQs हम लोग ऑलवेज चैप्टर के एंड पे करेंगे, बट जस्ट दैट हमारा एक आध चीज़ हो गया तो आप मेरे को आंसर दे सकते हो. फर्स्ट वन, कंपेयर्ड विथ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, alternative investment, traditional investments tend to be less liquid, or they have lower fees, or they require more specialized knowledge. To be less liquidity. Compared to alternative investment, traditional investment tends to be, आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करोगे और कंपैरिजन में किसको रखना है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को. सो क्या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कम लिक्विड होता है? आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिक्विड और दे आर नॉट लिक्विड? They are liquid. Traditional investment are liquid, so first answer is not there. Does traditional investments have lower fees? Lower fees, yes. Yes, the answer is lower fees, because alternative investments will have higher fees. And third one, does it require more specialized knowledge? Traditional investment, do they require more specialized knowledge? No, alternative investment requires more specialized knowledge. So answer is A. Are we clear with that one? यहाँ पे ना आंसर क्वेश्चन पढ़ना और इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो दे आर गोइंग टू टेक अराउंड द बुशेज. आंसर ऐसे नहीं पूछेंगे ये लोग, आंसर अपने को ऐसे पूछेंगे, तो अपने को थोड़ा क्वेश्चन इंटरप्रेट बराबर से करना होगा. क्लियर है? यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. डन है? Yeah. चलो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशंस में विल टेक इट अहेड. चलो गाइज, थैंक यू, आई होप यू आर एंजॉयिंग. लव यू, टेक केयर, बाय.